Students, so today we are going to discuss all these things with briefly. We are going to discuss the motion chapter briefly. Look at here. If you want to point out all these physical factors that you have learned, the very first factor is your distance. Okay, distance and displacement, they both are like cousin brother. When the distance possesses certain direction, then we can call it as displacement. Okay, and displacement is the shortest distance covered by the moving object. Then when we are going to find out the distance covered by the object with respect to certain time change, then we will get our speed. And similarly, in case of displacement, when we are going to find out the rate of change of displacement with respect to time, then we will get our velocity. That means the ratio between your distance and time will provide you speed, and the ratio between displacement and time will provide you velocity. And remember one thing, when the magnitude of displacement will be equal to the distance, at that same time we can say as velocity or speed. Okay, then again, when the difference between speed and velocity is only one thing matters, that is the direction, as like they are requisite factors, distance and displacement. In between them, direction plays the major role, and in between speed and velocity, the direction also will play the major role. And when we are going to find out our acceleration, what we have to do? We have to find out the rate of change of velocity with respect to time. Okay, then we will get the acceleration. Then if you want to know further, the acceleration will be your gradual increasement of velocity. But some cases are also there where there is gradual decreasement of velocity occurs. At that case, we will call it as negative acceleration or your retardation. Remember, the negative acceleration is otherwise called as the retardation. So the value of retardation will be represented as negative value with negative sign, and the value of acceleration will be represented as positive sign with the positive sign or with positive value. Clear? Look at here. Look at here. For your remembrance, you have to keep one thing in mind, that this picture shows the displacement, okay, which has one arrow upon its head. That this arrow represents the direction, which is like the cousin brother of your distance. When you want to find suppose one person has traveled the path from the house to the school, then to the playground, then this red color path will represent the distance. And when you are going to find out this is your initial point and this one is the final point of the motion, and when you are going to find out the shortest path, what you have to do? You have to join these 2 points, and this point will represent your shortest distance. That means the displacement, and along this direction. Understood everybody? What is the difference between the distance and displacement? Now look at here. We can represent the data, that means different cases in which the object is moving in a graph paper. Okay, and also we have learned various cases through which how can you plot graph on the graph paper. Then when we will proceed further, we will get our equations, and these 3 equations are very most important. You have to use the equations throughout your life, that means during the course of your learning, and you have to use this equation to make easier your numericals. So look at here, and I have already said one story regarding to these 3 equations and how to remember these equations. So here we have to do what? Look at here. आप लोगों को क्या करना है कि किसी 2 लोगों के बारे में आप लोगों को सोचना है.
एग्जाम्पल के दौर उन दोनों लोगों को लेना है। सोचो जैसे कि सपोज वो दोनों है, एक है ए और दूसरा है बी। तुम कोई नाम भी नहीं सकते हो। सपोज ए से अमन, बी से बमन। ओके, सो अमन और बमन वो दोनों थे और वो दोनों जंगल घूमने गए। तुम लोगों को पता है जैसे कि धमाल के मूवी में सारे लोग किसी के पीछे भाग हुए थे, वो सारे लोग डब्लू के पीछे भाग रहे थे ताकि उन लोगों को खजाना मिल जाए। और यहाँ अमन और बमन दो लोग जंगल की तरफ जा रहे थे ताकि उन दोनों को वो ट्रिक मिल जाए जैसे ये तीनों इक्वेशंस जो है उन लोगों को याद रह जाए। इसीलिए वो तीनों ने क्या किए, और उन दोनों में बमन जो था बहुत क्या वो उतनी ब्रेव नहीं था अमन के जैसे। तो फिर बमन जो है इजीली डर जाता था हर चीज से। तो फिर जब वो जंगल के अंदर गए, अचानक से बमन के सामने किसी ने आ गया जैसे बस वो लगा। तो फिर वो सोचा कि क्या है, उसके सामने भूत या फिर कुछ भूत भूत जैसे वो चिल्लाने लगा। पर वो इतना घबरा गया था कि वो भूत चिल्लाने के बजाय बमन ने क्या चिल्लाया, बमन ने चिल्लाया भूत। इंस्टेड ऑफ सेइंग भूत, बमन क्या बोला, बमन बोला कि वेट, बमन बोला भूत। वो भूत चिल्लाने को चाहा पर वो भूत भूत जैसे वो चिल्लाने लगा। ओके, तो फिर यहाँ देखो तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन आ गया मोशन का, जो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। गेट दैट? v इक्वल्स टू योर यू प्लस ए टी। और वो बमन ने जो डरा हुआ था पहला ही इक्वेशन बता दिया वो भूत को देख के चिल्लाते चिल्लाते। ठीक है, और वो भी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, टी क्या है, एस क्या है, वो सब मैं बताऊंगा बाद में। पहले आप लोग ये सबको याद करने के लिए स्टोरी को अच्छे से सुनो। और जब वो बमन ने इतना जोर से चिल्लाया कि भुआ भुआ तो उसके सामने, फिर वो अमन भी थोड़ा डर गया। अमन ने पूछा अरे क्या भाई, क्या तूने देखा? तो फिर वो बमन ने बोला नहीं नहीं नहीं, बस वो मेरे सामने कोई वो गुजरा। और वो दिखने में कैसा था? अमन ने पूछा अरे वो भाई वो दिखने में कैसा था, बताओ तो जरा। फिर अमन ने बोला क्या, वो फिर से वो बमन बोल रहा है, सुनो वो क्या बोल रहा है। और वो जो दोबारा बोलने को चाह रहा है घोस्ट के बारे में, उसी से तुम्हारा सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन के लिए वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है वो भूत जो है एक सूट पहना हुआ था, पर सूट का स्पेलिंग यहाँ याद करना SUT। ओके, और साथ साथ क्या पहना हुआ था, 2 हाफ शर्ट पहना हुआ था। हाफ शर्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए बस बोलना AT। हाफ शर्ट पहना हुआ था 2, फिर इसीलिए याद रखना कि स्क्वायर, टी का स्क्वायर है यहाँ। ठीक है, और इसी से देखो तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन आ जाता है, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हो गया। और ये बमन का सेकंड लाइन था। फिर आखिर में वो दोनों अपनी गांव वापस चले आए और गांव में आके वो सारे लोगों को बताने लगे कि वो लोग क्या देखे। और तुम लोगों को तो पता ही, लोग ने जो कुछ भी दिखे होते हैं उसको बस वो कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो फिर वो दोनों ने गांव लोगों के सामने ऐसा ही कुछ वो बोलने लगे। तो फिर वो दोनों ने क्या बोले, और वो बातों को जो कुछ भी वो घोस्ट के बारे में देखे थे, वो जो घोस्ट आज इट वाज था वो उससे 2 गुना करके बोले। मतलब कि 2 as it was, they have doubled the size of ghost. They have doubled the size of ghost. That means 2 as it was the ghost. 2 as it was the ghost. They have doubled the size of ghost by saying what? That the size of ghost was, कि ghost कितना बड़ा था, वो very very ऊंचा दिख रहा था। क्या? वेरी वेरी यानी कि V स्क्वायर, और ऊंचा दिख रहा था U स्क्वायर। पर वो दोनों ने सही बात नहीं बोले, तो फिर इसलिए माइनस ही रख दिया मैंने बीच में।
ठीक है। तो फिर ये सारा कुछ था तुम लोगों के लिए कुछ नॉनसेंस वे, जिसके जरिए तुम लोगों का ध्यान ही वो आते रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये सबसे तुमको तीनों इक्वेशन याद रह जाने चाहिए। तो फिर हमारा पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस 80, बमन ने बोला भूत भूत। और हमारा सेकंड इक्वेशन है, वो भूत क्या पहना हुआ था, एक सूट और 2 हाफ शर्ट, यानी कि एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन क्या है, वो लोग ने दोनों आकर वो गांव लोगों के सामने क्या बोल रहे हैं, वो टू आज इट मतलब पहले जैसे था उससे डबल बढ़ा के बोल रहे हैं। कैसा, इक्वल्स टू v स्क्वायर मतलब कि वेरी वेरी माइनस ऊंचा ऊंचा यानी कि u स्क्वायर। क्लियर, रिमेंबर। अब देखो यहाँ v क्या है, लुक एट हियर v इज इक्वल्स टू योर फाइनल वेलोसिटी, u stands for initial velocity, then t stands for time period, a stands for displacement, don't be confused with distance, okay, then a stands for acceleration. Understood everybody? Remember, take the screenshot. Okay, so now we have to proceed further. Look at here, how could we able to derive the equation? देखो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ने क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सुनो। ये जो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस 80, इससे वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राफ है, आप लोगों को मैंने बताया था क्लास के दौरान कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो फिर इसका जो लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे ही इंक्लाइंड आएगा। और देखो यहाँ तुम्हारे u से a तक जो दूरियां हैं, इसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, एंड यू विल denote it as small u, okay. And to get the final velocity, you have to plot the perpendicular upon your velocity axis to get this point. So this length will be your final velocity. That means v. U stands for your initial velocity, v stands for your final velocity. And how much change the object has made during the velocity, दैट मीन्स वो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, उसके लिए क्या हमारा कौन सी लेंथ वो लेंगे। देखो ये जो लेंथ है बी डी, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, v माइनस यू करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और ये जो है, ये जो दूरियां मिल रहे हैं आप लोगों को, ये है टाइम पीरियड, मतलब कि इतनी टाइम से ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्सेलरेट हुआ है। और देखो ये सबको अगर हम वो रिप्रेजेंट करें, मतलब कि एक्सप्लेन करेंगे मैथमेटिकली, तो फिर हमारा ओ ए जो है, पहला देखो ओ ए जो है यू मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, बी सी जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी, और ओ सी जो है हमारा टाइम पीरियड। देन यहाँ बी डी जो है ये रिप्रेजेंट करता है कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी सी माइनस सी डी करना पड़ेगा, तब जाके हमें इतना ये लेंथ मिलेगा। और उसके बाद अगर वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो फिर हमको आखिर में क्या मिलेगा, बी सी इक्वल्स टू पी डी प्लस दिस मच डी सी, ओके। और देखो डी सी जो है ओ ए से इक्वल है, ये दोनों की लेंथ एक ही है, तो फिर हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल्स टू बी डी प्लस ओ ए, ओके। बी डी स्टैंड्स फॉर योर चेंज इन वेलोसिटी एंड ओ ए स्टैंड्स फॉर योर इनिशियल वेलोसिटी।
तो फिर अगर हम सारे के सारे वैल्यू और यही जो इक्वेशन 1 हमारा बना उस पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो फिर हम लोगों को क्या मिलेगा कि हमारा बी डी जो है वो हो जाएगा v माइनस यू, दैट मीन्स योर चेंज इन वेलोसिटी दैट आई वाज सेइंग इनिशियली। और इसको हमको इक्वेशन 2 कर देना है। और इसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर एक्सेलरेशन क्या है, कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी, तो फिर वो देखेंगे ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, और वो क्या है जो है चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम पीरियड, दैट मीन्स योर ओसी एंड ओसी इक्वल टू योर एडी। ओके, सो इट हैज ऑलरेडी टेन ए इक्वल्स टू योर बी डी बाई एडी और योर बी डी बाई ओसी, एंड इसको इक्वेशन 3 कर देना है। और अगर ओसी का वैल्यू है टी, मतलब कि इतना ही टाइम वो लिया है ऑब्जेक्ट, तो फिर उसे अगर दिस इक्वेशन में ऐड कर लेंगे तो फिर वो क्या होगा कि हमारा a इक्वल्स टू बी डी बाई टी एंड देन बी डी विल बी इक्वल्स टू योर ए टी, एंड अगेन इफ विल मेक equal to both the equation, these two equation, then what you will get, we will get this right hand side as at equals to v minus u, then v will be equals to u plus at and we will get our first equation। और ये था तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही तुम पहला इक्वेशन जो है उसे प्रूव कर सकोगे। और दूसरा देखो ये कैसे डिराइव है। आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक यूज होता है कि इससे यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो सेकंड इक्वेशन है हमको डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेशन करना है, और ये किस फैक्टर को लेकर बेस बनाना है, हमको पोजीशन और टाइम को लेकर बनाना है ये सब। तो फिर इसीलिए सेकंड इक्वेशन जो है उसे बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, तो फिर देखो हमको क्या करना है कि ये ग्राफ में ये दोनों एरिया को अगर हम ऐड कर लेंगे तो फिर ये पूरी एरिया हमको मिल जाएगी, और ये पूरी एरिया हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। और ये सबकी एरिया की जो है साइड, वो सबकी वैल्यू अगर हम v, u और t से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारा एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और s जो है मतलब कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है उसे s से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर तुम ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखोगे, हमको क्या करना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट पाने के लिए ये जो देखो OADC इसका एरिया निकालना है, और इसके लिए क्या करना है हमको OA के साथ AD को मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ हो रहा है, और साथ में क्या ऐड करना है, इसका ये जो ट्राइंगल का एरिया, और इससे देखो ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू this much, that's when base your AD into height BD। ओके, और ये दोनों ऐड करने के बाद तुमको क्या करना है कि OA को देखो OA को U से रिप्रेजेंट करना है, और जो AD और योर OC इसे T से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये तुम्हारा टाइम चेंज है। और इक्वेशन 4 मतलब कि पिछला इक्वेशन देखो, ये जो इक्वेशन है इसमें तुम्हारा यही जो BD है, ये वाला जो है चेंज इन वेलोसिटी, ये कितना हुआ था 80। तो फिर ये इक्वेशन को हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन है उस पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो फिर सब्स्टिट्यूट करने से मतलब बी डी एज एटी अगर रिप्रेजेंट करेंगे यही ये वाला जगह पे, तो फिर हमको क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एस इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ होल इंटू टी इंटू 80, then t into t will be t square, so your equation will be s equals to ut plus half 80 square। मतलब कि वो क्या देखा था बमन ने कि बहुत सूट और उसके साथ साथ 2 हाफ शर्ट पहना हुआ था। ओके, हाफ शर्ट देखो। फिर चलते हैं हमारा अगले इक्वेशन की तरफ, जो है कि 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। और इससे देखो यहाँ क्या करना है आप लोगों को, यही बस सेम ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेना है, और इसमें तुम्हारे क्या निकालना है, तुम्हें पोजीशन दिखानी है, और किसी को बेस पे लेके वेलोसिटी को बेस पे लेके। तो फिर इसीलिए जो थर्ड इक्वेशन है इसे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन भी कहा जाता है, ठीक है।
और जो पहला दो इक्वेशन हमने निकाले वो दो इक्वेशन से हमको ये थर्ड इक्वेशन ही मिलेगा। कैसे कि जो एरिया है हमारा ओ ए बी सी का वो एक ट्रापिजियम होता है, और ट्रापिजियम की एरिया क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है आप लोगों को पता है। उसका फॉर्मूला ये है कि हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, और यहाँ हमारा ओ ए और सी बी जो है मतलब कि बी सी जो है ये दोनों पैरेलल साइड्स है, और हाफ इंटू ओ ए प्लस बी सी, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द OC, that means OC is your non-parallel straight line. Okay, that means this one will represent the height of the trapezium. तो फिर ट्रापेजियम का एरिया फॉर्मूला ये है कि हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. So OC will represent your height of the trapezium, and when will you put their respective value, that means U, T, V and A, and finally you will get the velocity time relation as T equals to V minus U by A. Okay, this one is the first equation that we have, first equation of motion. Okay, and when you will substitute these two with your first equation, then you will get what? S equals to your V plus U whole into V minus U divided by 2A. Then S will be equals to your V square minus U square by 2A. Then 2AS, when you take 2A to left hand side, then you will get 2AS equals to V square minus E square. तो फिर ये था तुम्हारा आप लोगों का वो जो थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन. ऐसे ही डिराइव कर सकते हो आप लोग. और अब देखते हैं आखिर में कि ये जो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है उसके दौरान हमारा देखो ये जो क्लॉक का जो है सेकेंड हैंड, इसका जो टिप जो है वो रोटेट कर जब वो ऐसे घूमता है तो फिर वो क्या करता है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है हर एक सेकंड में, मतलब कि वो यूनिफॉर्मली अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है और इक्वली टाइम इंटरवल से. तो फिर ये जो इसी तरह की मोशन को बोलते हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन. और इस तरह की मोशन तुम देख सकते हो कि जो सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च किए जाते हैं वो लोग बस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को फॉलो करते हैं. ठीक है, देखो हियर एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड सबटेंडिंग इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, तो फिर अगले देखते हैं कि इसका वेलोसिटी हमको कैसे निकालना है. जब ऑब्जेक्ट ऐसे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो फिर वो वेलोसिटी कैसे निकालना है. और वेलोसिटी क्या है हमको पता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और योर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय योर टाइम. सो हमारा ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है उसके लिए क्या करना है, ये जो पूरी सर्कल है इसका सर्कम्फरेंस निकाला है. और सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2πr. सो द वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विल बी योर circumference of the circular path upon time, and the formula for circumference of the circular path will be 2πr upon t. That's all about your chapter motion. Okay, thank you.